اب وہ فائنینشیل ماڈل اٹھ کے کہیں گے جی میں کسی اکاؤنٹنٹ کو پکڑ رہا ہوں کہ میرا فائنینشیل ماڈل خدا رہا, if you cannot make a basic one tab Excel or Google sheet plan, you shouldn't be in the business of starting a company. Don't start a startup. Do not start a startup, because then you will never be able to read KPIs. Yeah. Deep, good to see you. Long time. Long time. کیا ہو رہا ہے آج کل؟ Bus, not much. And for I think the audience, I think they should know that we're friends from a while. Yeah. Way before you made it to Pakistan. Absolutely. So glad that you're here. Actually, way before Baikia. Way before Baikia. That's exactly. right. That's right. So glad to see you actually in my hometown. You know, I didn't realize that you were from Islamabad. Yeah. I'm actually from Pindi, but I went to school in Islamabad, and I also lived in Islamabad after I came back from college. So you're living in my hometown, Karachi. Yes. and I'm living. I love in yours. Karachi. You know. And I have to say, I love Islamabad. Yeah. You know, it's the one thing that's been amazing is just seeing just how much this part of the country has to offer. Yeah, and you know, I think, and we were speaking about this earlier as well. Like, Yeah. I think there's, you know, people live in such cocoons, you know, and we talked about restaurants and pharmacies. Like, you Yeah. won't find Islamabad ki pharmacies Karachi mein ya Lahore mein. Likewise, you won't find Karachi ke restaurants in Pindi, Islamabad or Lahore. So I think there's so much isolation, I guess, you know, in mobility. Ki when you get the opportunity to be basically hopping back and forth, you actually really start to find so much of value, you know, and you start to really enjoy like other pockets of the country as well, you know. You know, speaking of یہ جو آپ بات کر رہے ہو کہ نیشنل برانڈز کیوں نہیں ہیں کہ آپ کو نظر آتی ہیں کہ یو نو لائک فار ایگزامپل ریسٹورینٹس کا ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ ایک سٹی میں آپ کو نظر آئے گا کہ 4-5 برانچز کھول لیں, بٹ یو ڈونٹ سی ایز مچ sort of city expansion happening, and for not just in the restaurant business but in many businesses. Yeah. And Baikia is one of those businesses that has actually successfully started to launch now in multiple cities. So thoda sa batao what has that journey been like as you've gone from your core city, which was Karachi, Yeah. which is where you started. What was city number 2 like, and how hard was it? اور پھر اس کے بعد کس طرح, what was that journey like? تو آئی تھنک ہمارا تو ایک ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے, رائٹ. سو ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے, اس کے بعد آپ نے ایکسیکیوشن آپریشنلی کرنی ہوتی ہے ان دوسرے شہروں میں, رائٹ. اینڈ آف کورس ہر شہر کی مارکیٹنگ کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, رائٹ. لیکن فنڈامنٹلی آپ نے جو چیزیں سوچنی ہے, اینڈ لسن آئی بی ویری کینڈیڈ ود یو, وی ہیو ناٹ بین سکسیزفل ایٹ اٹ ایدر. آئی تھنک یو نو Karachi is skewed for Baikia. Pindi, Islamabad is now also doing really well. You know. And skewed ka to tell me a little bit more about what you mean by skewed. So I think historically hum log 80% हमारी business Karachi में होती थी, और 20 Pindi, Islamabad और Lahore combined थी. Lahore was मतलब based on total business for Baikia का 80% कराची में था. ठीक है. लेकिन अभी basically Pindi, Islamabad is performing for us. तो अब basically 70-30 हो गया, right. I think ہم ویک ہیں ابھی لاہور میں, لیکن we are you know, I think ہم نے اس لیول کا ایفرٹ نہیں لگایا ابھی تک, both from a capital perspective and in an operational perspective, جو ہمیں لگانا چاہیے. But again, you know, I think اگر آپ اس بزنس میں ہو جس بزنس میں ہم ہیں, تو آپ نے پہلے 2 سٹیز کیپچر کرنی ہے, ایک پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور دوسرا بیسک کمپیٹرز کا سب سے بڑا شہر پورے ریجن میں. پنڈی اسلام آباد آپ کو پتہ ہے, یو نو, ہمارے کمپیٹیٹر سب سے بڑا شہر ہے. بٹ یہ ایکچولی میرے لیے یہ لرننگ تھی کہ آپ کی جو کمپٹیشن ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ آپ کی کمپٹیشن ہے کیا, کہ پنڈی اسلام آباد جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ اور بڑی مارکیٹ ہے, بہت بڑی رائڈ ہیلنگ کمپنیز کے لیے, بہت زیادہ. اچھا منیب, یہ بتائیں, ہم نے آئی تھنک یہ تو بات ہی نہیں کی کہ یو explain your business, what Baikia does, like just very quickly for somebody who may not have tried out a Baikia. کیا کرتا ہے, how do you talk about it? آپ ایک ایپ کھولیں, اس پہ بٹن دبائیں, 5-10 منٹ میں کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو یا تو آ کے کہیں لے کے جائے گا, ٹھیک ہے, یا آپ کا کوئی پارسل کہیں ڈیلیور کر دے گا, ٹھیک ہے, یا آپ نزدیک ترین کسی مارکیٹ سے کچھ منگوا سکیں گے, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ ویری ویری سون آپ پیسے منگوا بھی سکیں گے, بھجوا بھی سکیں گے, اور کھانا بھی منگوا اور بھجوا سکیں گے. تو پیسے منگوا سکیں گے, جی. اچھا, تو اس کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا, کیا مطلب ہے کہ میں گھر پہ بیٹھی ہوں گی, میں بٹن دباؤں گی اور مجھے 20,000 روپے چاہیے گھر پہ,
अच्छा 20,000 नहीं, हम 10,000 तक। अच्छा चलिए 10,000 चाहिए, तो किस तरह वर्क होगा वो? तो एक तो ATM टाइप जर्नी होगा, आप ठीक है। अपना कार्ड एंटर कर सकेंगे और कोई ना कोई आपको कैश ला देगा। है। लेकिन उसके अलावा एक और जो जर्नी है वो ये कि बिल फर्ज आपको मुझसे पैसे वसूल करने हैं, ठीक है। तो आप अपने ऐप में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पुल करेंगे, ठीक है, और मुझे आप एक व्हाट्सएप बाइकिया के जरिए व्हाट्सएप इनवॉइस कर देंगे, ठीक है। वो मुझे व्हाट्सएप पे जब मिलेगा, ठीक है, तो मैं या तो वीज़ा मास्टर कार्ड या बैंक के जरिए आपको पेमेंट कर सकूंगा उसी वक्त, या मैं बटन दबाऊंगा और एक बाइकिया आ जाएगा और मुझसे 2-3-4 हज़ार रुपये वसूल करेगा। जिस हाथ से वसूल करेगा उसी हाथ से आपको आपके बैंक के जरिए एक SMS वसूल हो जाएगी, जिसके जरिए बेसिकली आपको यू रिसीव द मनी। तो मुनीब, क्या है, व्हाट इज कीपिंग यू अप एट नाइट? क्या मतलब नाउ एज यू थिंक अबाउट द नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ जो बाइकिया की आ रही है, क्या है सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? व्हाट आर यू रियली स्ट्रगलिंग विद? व्हाट टीम क्या स्ट्रगल कर रही है? आई थिंक सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ देखता हूँ और फिर मेरे साथ जो कॉलीग्स हैं उनको देखता हूँ। मैं कहता हूँ यार कि क्या वजह है कि भाई इंटेलिजेंस है, अंग्रेजी बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं किया, राइट? हमें छोड़े वैसे पाकिस्तान ने डिलीवर नहीं किया। यहाँ से जाके आप लंदन में चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, सुप्रीमली आप एक्सेल करते हो, लेकिन अपने मुल्क के लिए एक्सेल नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा तो ये है कि भाई हाउ डू वी स्टे फोकस्ड, हाउ डू वी deliver, like how do we stop the talk and actually start to deliver, right? So I think that keeps me up, right? The problem also is, Tanya, I mean, you know this more than I, because you worked obviously in the billion person क्या था, next billion users वाला, कि भाई आपकी जो 90% आबादी है वो तो पढ़ लिख ही नहीं सकती कुछ भी अंग्रेजी में, तो भाई ये जो आपकी जो कहानी है इतनी आबादी पे, इसको how do you move the puck? Yeah. It's a fundamental thing which we have to solve for, right? क्योंकि अगर हम लोग नहीं सॉल्व कर लेंगे, तो कौन करेगा? अगर आप नहीं सॉल्व करोगे या हम नहीं सॉल्व, 100%, कोई है ही नहीं इसे सॉल्व करने के लिए। मैं लोगों को ये कहती हूँ आमतौर पे कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई अमेरिकन कंपनी या कोई चाइनीज़ कंपनी आके आपकी लोकल मार्केट की लोकलाइज चैलेंजेस को सॉल्व करेगी। आपके लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनीज लाइक यू, लोकल प्लेटफॉर्म जो हैं, आपके पास जो एबिलिटी है रियली डाउन टू द लेवल ऑफ समझना कि यार कौन सा बंदा किस तरीके से इस प्रोडक्ट को अडॉप्ट करेगा, चाहे वो लिटरेट हो ना हो, चाहे वो ये ज़बान बोलता हो वो ज़बान बोलता हो, तो दैट्स, बट योर एबिलिटी टू डू दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी फार ग्रेटर देन a company that's not local. Yeah, you'd hope so, right? No, absolutely. I believe it. Yeah. I believe it. I mean, hope तो दूर की बात है। मैंने तो, I mean, the thing is we have seen this story, ना? We've seen this story दुनिया में हर जगह देखी है हमने। And especially I don't even talk about developed markets. मैं तो emerging markets की बात करती हूँ ना, markets that पाकिस्तान अपने आप को compare कर सकता है। आप इंडोनेशिया ले लें, वियतनाम ले लें। I mean, आपकी कैटेगरी में आपको पता है कि there is a multi-billion dollar company in Indonesia, और वो इंडोनेशिया में इतने सक्सेसफुल हुए कि उन्होंने फिर बाकी मुल्कों में, जो साउथ ईस्ट एशिया के बाकी मुल्क हैं, उनमें एक्सपैंड करना शुरू कर दिया गोजैक। तो हमारे लिए तो ऐसे इट वुड बी अ मैटर ऑफ प्राइड कि एक पाकिस्तानी कंपनी पाकिस्तान से शुरू करे, इट्स कॉल्ड लेबल्ड मेड इन पाकिस्तान, एंड देन इट स्टार्ट्स टू एक्सपैंड आउट इनटू द रीजन। वी सीन द इकोसिस्टम इवॉल्व। पहले कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल होती थी, अब ज़रा सी आसान हो गई हैं। हमने फंड रेजिंग की बात की कि पहले वेंचर कैपिटल लोकल था ही नहीं ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली, अब है, डिसेंट फंड्स बन गए हैं लोकली। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यू विश कि आप अभी यू प्रॉब्ली टॉक टू अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है यार क्यों, व्हाई आर यू गाइज नॉट लर्निंग, कि क्यों अभी तक वही चीज़ें, कोई वो मिस्टेक्स अभी तक वही क्यों कर रहे हो? So I think many startups don't have two things before they even start the startup. डिस्कस पूरी दुनिया से कर लेंगे, ठीक है, लेकिन दो चीजें उनकी सही नहीं होंगी। एक उनका पिच डेक नहीं होगा सही, ठीक है, दूसरा उनका मॉडल नहीं बना होगा, फाइनेंशियल मॉडल नहीं बना होगा, ठीक है। अब वो फाइनेंशियल मॉडल उठ के कहेंगे जी मैं किसी अकाउंटेंट को पकड़ा हूं कि मेरा फाइनेंशियल मॉडल खुदा रहा, इफ यू कैन नॉट लर्न हाउ टू मेक अ बेसिक वन टैब एक्सेल और गूगल शीट plan, you shouldn't be in the business of starting a company. Don't start a startup.
Do not start a startup because then you will never be able to read KPIs. Yeah. Right? So stop dreaming. Yeah. Right? So nip you in the bud right there. Right? The second thing is if you don't have your storyline right, जो आपका pitch deck है, अब pitch deck जो है ना आपकी एक कहानी नहीं होनी चाहिए. मतलब वो अगर जो है आप किसी एरे गैरे को आप एक काम करें अपने चचा को जो उठा के जो है ना उसके पहले 3 स्लाइड्स अगर पहली 3 स्लाइड्स में अगर कुछ समझना है उसको समझना है या बेसिकली वो उसका इंटरेस्ट लूज हो जाए ना तो खत्म हो गया, छोड़ दो, गार्बेज में फेंको, किसी इन्वेस्टर से बात ही ना करो. ठीक है. तो आई थिंक 2-3 चक्कर ये हैं कि जाहिर सी बात है अब आप कहोगे कि भाई आप तो बड़े लकी हो, आपका तो पहले बैकग्राउंड था तो आपको तो बेसिकली आसान थी. वो भी कब से लगे हुए हैं हम लोग, एक ही चक्कर में लगे हुए हैं. आप देखिए ना, आप let's talk about you going to college or me going to college. You were a lot smarter than I was, but what I had to do is I had to apply to 100 places. I had to apply to 100 places to essentially get somewhere, right? So या तो आप rocket scientist हो, right? और आप जो you slot yourself into the interview, ठीक है, right? और या आप नहीं हो ना तो आप बेसिकली आपको वो कुछ ना कुछ क्रेडिबिलिटी दिखानी है. लेकिन अगर आपकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है और आप बेसिकली परसिस्टेंसी भी नहीं, और परसिस्टेंसी बेवकूफाना परसिस्टेंसी नहीं, परसिस्टेंसी कि हर दफा आप समझो कि मैंने पिछली दफा क्या गलत किया था, मैंने किस तरह लर्न करना है, क्या गलत किया था. अक्सर जो खासकर जो टेक्निकल लोग होते हैं या तो आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, और किसी को आप इंप्रेस कर दो, ठीक है, लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली आपने अपनी बातों से ही लोगों को इंप्रेस करना, फिर बातों के बाद लोगों ने आपकी रैकी करने की कोशिश करनी है कि भाई आपसे 4 सवाल पूछेंगे आपके बारे में कि आपको पता भी है कि नहीं पता. So I think the example that we were speaking about is कि it's like आप रिश्ता मांग रहे हो, ठीक है, right? और कई दफा जो अगर आपका खानदान बड़ा नहीं है या आपके वालिद साहब की फैक्ट्री नहीं है तो आपको रिश्ता में ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, राइट? थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको ये दिलासा देना पड़ेगा कि भाई आई एम समवन ट्रस्टवर्दी. ठीक है, मुनीब मेरे पास तो 10 और क्वेश्चंस हैं, आई कैन कीप गोइंग. आई नो वी आर शॉर्ट ऑन टाइम. तो क्या व्हाट डू यू वांट टू लीव आवर व्यूअर्स विद, सम थॉट्स, एडवाइस, क्या व्हाट डू यू वांट पीपल टू टेक अवे फ्रॉम दिस? यस, मेरे ख्याल में जी हमें थोड़ा सा जो है ना चाइनीज जो हमारे नेबर्स हैं उनकी तरफ देखना चाहिए, ठीक है. और अगर आप वो देखें उन्होंने किया है कि वो कोई भी चीज़ होगी, खिलौना होगा ना, टेबल होगा, ठीक है, या कैमरा होगा, तो वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसको देखेंगे तो ये नहीं कहेंगे जी मुझे बाहर से कुछ चाहिए. वो पहले उसको तोड़ेंगे, उसको खुद बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है. उसको खुद बनाने के बाद वो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि इसको मैं कैसे कॉपी कर सकता हूं, ठीक है. अगर आप देखें जो हिस्ट्री है ये हांगकांग की और ताइवान की और फिर अल्टीमेटली चाइना की, ये पहले कॉपियां बनाते थे, ठीक है, लेकिन जब इन्होंने कॉपियां बनाई तो उन्होंने बनाना सीखा. जब बनाना सीखा तो अपनी ब्रांड्स बनाने सीखे. तो आई फॉरगेट टेक्नोलॉजी अगर आप कर सकते हैं 100 बिस्मिल्लाह, टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते तो खुद ट्राई टू स्टार्ट मेकिंग थिंग्स, ठीक है. जब आप कुछ बनाएंगे तो आप खुद मुख्तार होंगे. अपनी ओनरशिप लें प्रॉब्लम्स की और खुद सॉल्व करें उनको. एब्सोल्युटली. देखिए आप खुद मुख्तार कैसे होंगे, राइट? या तो बेसिकली आप बोझ बने रहेंगे, ठीक, या आप खुद मुख्तार होंगे, या लोन्स रहते रहेंगे, सारी मुल्क को लोन्स पे के बेसिस पे चलाएंगे. बिल्कुल. सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग एंड क्रिएटिंग. ठीक है. थैंक यू मुनीब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑलवेज अ प्लेजर टू कनेक्ट. थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी.